Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today in this video I will discuss about sewage treatment and their disposal. Let us start the history of sewage treatment plant or sewage treatment. First record of the basic sewage treatment were used for waste removal in ancient Mesopotamia, where vertical shaft carried the waste away into cesspools, and similar systems existed in the Indus Valley civilization in India and in ancient Cretan Greece. Modern sewerage system was first built in the mid-19th century as a reaction of the exacerbation of sanitary conditions brought on the heavy industrialization and urbanization. सीवेज ट्रीटमेंट की शुरुआत एंशिएंट मेसोपोटामिया में ही हो गई थी। उस समय जो रेकर्स थे, उनको रेकर्स कहा जाता था, जो कि इन सीवरेज को या सीवेज को लेकर के जाते थे और उसको टाइम टू टाइम एम्पटीफाइड करते थे। जो मॉडर्न सीवर सिस्टम है, इसकी शुरुआत मिड 19th सेंचुरी में हुई एज अ रिएक्शन ऑफ दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का है। So sewage treatment or wastewater treatment is nowadays synonyms, is the process of removing contaminants from domestic and municipal wastewater containing household sewage plus some industrial water. ठीक है, तो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट का नाम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी है। इसका काम क्या होता है, जो भी कंटामिनेंट्स प्रेजेंट हैं वाटर में उनको रिमूव करना, चाहे वो डोमेस्टिक वाटर सोर्स से आए हों या म्यूनसिपल वाटर सोर्स से आए हुए हों या इंडस्ट्रियल वाटर सोर्स से आए हों। कंटामिनेंट्स कैन बी रिमूव्ड बाय द फिजिकल प्रोसेस, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। कंटामिनेंट्स को हम लोग फिजिकल सेपरेशन के थ्रू भी अलग कर सकते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू भी अलग कर सकते हैं, या बायोलॉजिकल प्रोसेस या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। ऑब्जेक्टिव क्या है सीवेज ट्रीटमेंट का? फर्स्ट इज टू प्रोड्यूस एन एनवायरमेंटली सेफ फ्लूइड वेस्ट स्ट्रीम एंड अ सॉलिड वेस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल और रीयूज़। यानी कि जो भी फ्लूइड है, जो भी वाटर है, वो जब डिस्चार्ज करे तो एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ हो, इस तरह से हम ट्रीट करें। और एंड द सॉलिड वेस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल और रीयूज़। एंड सेकेंड इज टू प्रोड्यूस अ डिस्पोजेबल इफ्लुएंट्स विदाउट कॉजिंग हार्म टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड prevent pollution. So the basic objective of wastewater treatment is to converting these toxic wastewater into the प्योर वाटर। यानी कि जो भी टॉक्सिक वेस्ट वाटर है, जिसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ हैं, बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज़ है, डिफरेंट स्टेप्स एज आई टोल्ड यू, इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। जो स्लश ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट है, basically there are three process: primary, secondary and tertiary. So broad difference between these primary, secondary and tertiary treatment. Basically the primary treatment is the physical treatment, and there is a chemical treatment as well as biological treatment. So physical treatment, type of treatment unit is the physical, and here we can use screen units, grid chamber or clarifier for separation of these particulate matter or the particles. These particles may be the larger size or a smaller size, and the types of impurities removed through screen: we can remove large suspended and floating matter. Through grid chamber we can remove grit. Through clarifier we can remove silt, sand and other heavier matter. And second one is the chemical treatment. Chemical treatment occur in the chemical reactors, and here we can remove the impurities that present in form of dissolved chemicals. Third and important type of treatment is the biological treatment. Biological treatment can done in trickling filter, activated sludge plant, rotating biological contractor and digester. इन सब में जो है biological treatment होता है, और जो इम्प्यूरिटीज़ रिमूव होती है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, वो है डिज़ोल्व ऑर्गेनिक केमिकल्स। सो कम ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट, it remove
all materials that can be easily collected from the raw sewage before they damage or clog the pumps and sewer lines of the primary treatment clarifier. प्री ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ कि ट्रीटमेंट से पहले यानी कि ऐसे पार्टिकल्स का रिमूवल जो कि वहाँ के पाइप को या पंप्स को क्लॉग कर सकते हैं या डैमेज कर सकते हैं. सो जनरली जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं लाइक ट्रैश, ट्री लम्स और दूसरे बड़े पार्टिकल्स, उनको हम लोग प्री ट्रीटमेंट के थ्रू रिमूव कर देते हैं. सीवेज वाटर पासिस थ्रू अ बार स्क्रीन to remove all large objects like the canes, racks, sticks, plastic packets etc. carried in the sewage treatment. So हम लोग इसको बार स्क्रीन के थ्रू पास कराते हैं सीवर वाटर को, ताकि जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, कैंस हैं, रैक्स हैं या स्टिक्स हैं या प्लास्टिक पैकेट्स हैं, वो रिमूव किए जा सकें. जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो उसमें मैनुअली क्लीन्ड स्क्रीन्स लगे होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर में ऑटोमेटेड मैकेनिकली रैक्ड बार स्क्रीन लगे होते हैं जो मॉडर्न प्लांट्स होते हैं. यू कैन सी हियर दिस इज़ द डायग्राम ऑफ बार स्क्रीन, पिक्चर ऑफ बार स्क्रीन. ये बार स्क्रीन होता है. इस बार स्क्रीन के थ्रू आप देखिए कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो यहीं पे सीव हो जाते हैं, छन जाते हैं, और जो स्मॉलर पार्टिकल्स विथ वाटर जो है वो आगे मूव करता है. ये बार स्किन के मेश साइज़ जो होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं टू ऑप्टिमाइज सॉलिड रिमूवल. इफ़ ग्रॉस सॉलिड्स आर नॉट रिमूव दे बिकम entrained in pipes and moving part of the treatment plant and can cause substantial damage and inefficiency in the process. And pre-treatment, there is a grit removal process. Grit means sand, gravel, cinder and heavy materials. So pre-treatment may include sand or grit chamber or channel where the velocity of incoming sewage is adjusted to allow the settlement of sand and grit. Grit removal क्यों जरूरी है? Grit removal is necessary because it reduces the formation of heavy deposit in aeration tank, aerobic digester, pipeline, channels and conduits. प्री ट्रीटमेंट में मैंने बताया, एक तो सबसे पहले बार स्क्रीन के थ्रू आप रिमूव करते हैं, देन ग्रीड रिमूवल किया जाता है. ग्रीड रिमूवल यानी कि रिमूवल ऑफ सैंड है, ग्रेवल है, सैंड है या हैवी मटेरियल्स है. इनका रिमूवल इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर इनको ना रिमूव किया जाएगा तो जो ये एरेशन टैंक है, नेक्स्ट आने वाले स्टेप में एरेशन टैंक्स यूज़ होता है, एनारोबिक डाइजेस्टर्स यूज़ होते हैं, उनको ये वहाँ पर जाके ये हैवी डिपॉजिट हो जाएंगे और उनके जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस कर देंगे. ठीक है, और इनके पाइपलाइंस को भी क्लॉग कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज़ रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाइजेस्टर क्लीनिंग कॉज्ड बाय एक्सेसिव एक्यूमुलेटर ऑफ ग्रीट. और जो डाइजेस्टर क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी है उसको भी ये रिड्यूस कर देंगे. एंड प्रोटेक्ट मूविंग मैकेनिकल इक्विपमेंट फ्रॉम एब्रेशन एंड एक्म्पेइंग एबनॉर्मल वियर. और इसके साथ साथ ग्रीड रिमूवल इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर एब्रेशन या कोई और दूसरी तरह की abnormalities ना आ पाए. So grid removal is essential for equipments with closely mechanized metal surface such as the commutators, fine screens, centrifuge, heat exchangers and high pressure diaphragms. Grid chambers तीन तरह के हो सकते हैं. First one is the horizontal grid chamber, second is the aerated grid chamber and third one is the vortex grid chamber. Vortex grid chamber have mechanically induced vortex and hydrologically induced vortex and multi-layer vortex separators. vortex इस तरह से होता है, vortex chamber जो होता है इस तरह से होता है. यहाँ पर जो होता है ग्रीड का रिमूवल के लिए यूज़ होता है. ये भी ग्रीड के रिमूवल के लिए यूज़ होता है. यहाँ पे देखिए डिफरेंट स्टेप्स है. ऊपर सेटल डाउन हो जाता है ग्रीड, तो ऊपर से प्योर वाटर नीचे वाले उसमें आ जाता है. एरेटेड ग्रीड चैम्बर का मतलब है कि यहाँ पे एरेशन या एयर भी प्रोवाइड किया जाता है. Given that traditional grid system have been designed to remove clean inorganic particles that are greater than 0.2110 millimeters or 0.0083 inch and most grid passes through the grid removal flow under normal condition. जो traditional grid chamber है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें 0.210 मिलीमीटर के भी जो पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो सके. During the period of high flow deposit, grit is resuspended and the quality of grit reaching the treatment plant increases substantially.
So grit remover is very important for efficiently operating the condition. Then there is next step, फ्लो इक्वलाइजेशन. फ्लो इक्वलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फ्लो को मेंटेन करना ताकि नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस में वाटर एक पर्टिकुलर फ्लो के साथ, वेलोसिटी के साथ जा सके. सो क्लैरिफायर एंड मैकेनाइज सेकेंडरी ट्रीटमेंट आर मोर इफिशिएंट अंडर यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन. सो जो हमारे नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो तभी अच्छे से वर्क करेंगे जब वहाँ पे फ्लो इक्वल रहे, फ्लो प्रॉपर रहे. और जो फ्लो इक्वलाइजेशन का काम है, इक्वलाइजेशन बेसिन जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि फ्लो को मेंटेन किया जा सके. फ्लो इक्वलाइजेशन बेसिन रिक्वायर वेरिएबल डिस्चार्ज कंट्रोल, टिपिकली इंक्लूड प्रोविजंस फॉर बाईपास एंड क्लीनिंग एंड मे ऑल्सो इंक्लूड एरेटर्स. क्लीनिंग में बी ईजियर इफ द बेसिन इज डाउन स्ट्रीम ऑफ स्क्रीनिंग एंड ग्रिट रिमूवल. कह रहा है फ्लो इक्वलाइजेशन जो है वो तब ईजियर हो जाता है जब बेसिन जो होगा वो डाउन स्ट्रीम होता है. फैट एंड ग्रीस रिमूवल नेक्स्ट स्टेप है. इसी में आपका प्री ट्रीटमेंट का ही पार्ट है. जब हम सीवेज को छोटे टैंक में पास कराते हैं तो स्कीमर के थ्रू जो ऊपर कलेक्टेड फैट एंड ग्रीस है उनको रिमूव कर दिया जाता है जो सरफेस पे फ्लोट कर रहे होते हैं. ए ब्लोअर in the base of the tank may also be used to help recover the fat as a froth. नीचे से एयर ब्लोअर्स लगाए जाते हैं जो कि फैट को फ्रॉथ के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फ्रॉथ के फॉर्म में फैट को रिकवर कर लिया जाता है. Many plants however use primary clarifier with mechanical surface skimmers for fat and ग्रीस रिमूवल. बहुत सारे प्लांट्स में प्राइमरी क्लैरिफायर के साथ मैकेनिकल सरफेस स्कीमर्स लगाए जाते हैं जो कि फैट एंड ग्रीस को करते हैं. आफ्टर द प्री ट्रीटमेंट वाटर passes to the primary treatment or primary sedimentation tank or after the primary treatment water goes into the secondary treatment. फिर वाटर जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाता है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज डिज़ाइन टू सब्सटेंशियली डिग्रेड द बायोलॉजिकल कंटेंट ऑफ द सीवर. सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट. यहाँ पर जो वेस्ट वाटर है उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है. एंड द मेजोरिटी ऑफ प्लांट ट्रीट द सेटल्ड सीवर लीक वर यूजिंग एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेस. यानी कि ज़्यादातर जो होता है एरोबिक ट्रीटमेंट होता है. सबसे पहले सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से वाटर आता है वो एरेशन चैम्बर में जाता है. एरेशन चैम्बर में जाता है, वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया उस पर वर्क करते हैं, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं, प्रोटोजोअन्स वर्क करते हैं, कुछ फंजाई भी वर्क करते हैं. सो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोअन्स कंज्यूम बायोडिग्रेडेबल सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक द sugar, fats, organic short chain carbon molecules and bind much of the less soluble fraction into fog. Then सेकेंडरी ट्रीटमेंट यहाँ पे एरेशन चैम्बर के बाद से जब ये इसका एरोबिक डाइजेशन हो जाता है तब फिर ये जो है फिक्स्ड फिल्म और सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम में जाते हैं. यानी कि जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है वो आपका सस्पेंडेड ग्रोथ फॉर्म में होता है या फिक्स्ड फिल्म टाइप में होता है. सस्पेंडेड ग्रोथ फॉर्म सिस्टम का मतलब हुआ कि जो माइक्रोबियल कम्युनिटी है उसको उसमें सस्पेंड करा दिया जाता है, या दूसरा प्रोसेस है कि उनका एक फिल्म बना दिया जाता है, एक उनकी लाइन बना दी जाती है या आप कहेंगे बेड बना दिया जाता है जिसके थ्रू सीवेज वाटर को पास कराया जाता है. सो सेकेंडरी सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड फिल्म और सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम. जो फिक्स्ड फिल्म और अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम है इट कैन बी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स और बायोटावर्स एंड रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंडक्टर वेयर द बायोमास ग्रो ऑन द मीडिया ऑन द सीवेज passes over its surface. The fixed film principle has further developed into moving bed biofilm, that is MBBR, and integrated fixed film activated sludge, that is IFA. So you can see here this is the picture of trickling filter. ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या हो रहा है, यहाँ पे सस्पेंडेड फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ये पाइप है, इस पाइप के थ्रू जो है आपका जो सीवेज वाटर है वो आ रहा है और यहाँ पर गिर रहा है और दिस इज़ द पोरस मीडियम. इसके थ्रू जो है वो पास हो रहा है जो सीवर वाटर है और नीचे से इसको एरेट भी किया जा रहा है एयर दे करके, और जो क्लीन वाटर है फिर उसके बाद से वो दूसरी तरफ से निकलता है.
This is the picture of rotating biological contractor. Basically this is rotating biological contractors look like this. RBC, this in short form it is called rotating biological contractor. rotating biological contractor इस तरह होता है, इसके ऊपर माइक्रोब्स रहते हैं और ये रोटेट करता रहता है और जो सीवर वाटर है वो इसके थ्रू पास होकर के क्लीन होता है. ये एक बेड है आपका, अगर हम कहें तो माइक्रोबियल फिल्टर का एक बेड है. यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोबियल बायोफिल्म है, एंड देन यहाँ पे एनारोबिक होते हैं, एंड देन फिल्टर मीडिया होता है और इसके थ्रू वाटर को पास कराया जाता है. Some secondary treatment include a secondary clarifier to settle out and separate biological fog or filter material grow in the secondary treatment bioreactor. अगर आप देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में तो कुछ इस तरह से सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक दिखाई देगा. राउंडेड सा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, यहाँ पर एक चौड़ा सा लेन आया रहता है, पाइप आया रहता है जिसके थ्रू जाता है. और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा माइक्रोबियल बेड है. अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस तरह से है. यहाँ पर आप देखिए जो आपका इफ्लुएंट है वो इस पाइप के थ्रू अंदर जाता है और यहाँ पर जाकर के इन पाइप्स के थ्रू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है और यहाँ पे जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू ये यहाँ पर आता है. ये आपका फ़िल्टर मीडिया है. फ़िल्टर मीडिया के ऊपर से होता हुआ ये क्लीन होता है और क्लीन वाटर फिर फर्दर यहाँ पे आउटलेट पाइप के थ्रू निकाल लिया जाता है. आउटलेट वॉल्व यहाँ पर होता है. ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग रोटेटिंग आर्म है, ये रोटेट करता है और यहाँ पर रोटेट करते हुए जो वाटर है ये फ़िल्टर मीडिया के थ्रू पास होता है. अभी हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट कहा था कि काफ़ी परसेंट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का वहाँ रिड्यूस हो जाता है, करीब 25 से 50%. बचा हुआ 85 से 90% जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो वहाँ पे रिमेनिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड था उसका 85 से 90% यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में रिड्यूस जाता है. जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, स्मॉल पोर्शन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और हैवी मेटल्स, वो भी वेस्ट वाटर से यहाँ पर रिमूव जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के थ्रू. जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह से बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में. एक तो सस्पेंडेड ग्रोथ फॉर्म में होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और दूसरा अटैच्ड ग्रोथ फॉर्म में होता है. सो सस्पेंडेड ग्रोथ फॉर्म का कॉमन नेम है एक्टिवेटेड स्लज, एरेटेड लगून्स. सो ये दोनों क्या करते हैं, दीज टू बोथ आर यूज्ड फॉर कार्बोनेसियस BOD रिमूवल मीन्स नाइट्रिफिकेशन. देन सेकेंड इज़ द अटैच्ड ग्रोथ. अटैच्ड ग्रोथ जो होता है वो ट्रिकलिंग फिल्टर इसका नाम होता है. रफिंग फिल्टर और ट्रिकलिंग फिल्टर विथ हाई हाइड्रोलिक लोड रेट्स और रोटेटिंग फिल्टर कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसका कि मैंने डायग्राम दिखाया था. RBC एंड पैक्ड बेड रिएक्टर होता है. एंड इनका भी यूज़ क्या होता है, जो कार्बोनेसियस BOD रिमूवल में और नाइट्रिफिकेशन में इनका भी यूज़ होता है. तो एक सस्पेंडेड हो गया जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज को सस्पेंडेड फॉर्म में रखा जाता है और दूसरा है अटैच्ड ग्रोथ फॉर्म में. And third type of growth is combined suspended and attached growth. इसमें ये दोनों के features जो होते हैं एक जैसे होते हैं. So the common name of this is trickling filter solid contact process, biofilter AS process, series trickling filter or AS process. And the use of all these are carbonaceous BOD removal or nitrification. देन द वाटर पासिस इनटू द टर्शरी ट्रीटमेंट, यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान जितना भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हुआ वो हो गया. यू कैन सी हियर प्राइमरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो फिज़िकल ट्रीटमेंट है. इसमें आपका जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो भी रिमूव कर लिए गए सेटलिंग चैम्बर के थ्रू और फिर इसके बाद से जो स्लज हैं वो हॉपर के थ्रू कलेक्ट कर लिए गए और स्लज डाइजेशन यूनिट में भेज दिए गए. देन उसके बाद से प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद से जो वाटर है वो एरेशन टैंक में गया और सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में गया. सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में जाने के बाद से वहाँ पे इसका बायोलॉजिकल डाइजेशन हुआ मटेरियल्स का, चाहे वो सस्पेंडेड बैक्टीरियल ग्रोथ फॉर्म में हो चाहे वो आपका एक्टिवेटेड अटैच्ड फॉर्म में हो. दोनों से इसका ट्रीटमेंट होने के बाद से इसमें ज़्यादातर जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं. तब उसके बाद से जो है वाटर जो है अब टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए जाता है.
जब वाटर यहाँ पे टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ यूज़ हुए हैं इसके लिए, क्लीनिंग के लिए। सो टर्शरी ट्रीटमेंट का काम क्या होता है? डिसइंफेक्ट करना वाटर को, जो भी बैक्टीरियल पॉपुलेशन है उसको रिड्यूस करना, प्रोटोजोअल पॉपुलेशन है उसको रिड्यूस करना, और वाटर को जो है ऐसा बनाना कि वो एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज किया जा सके। So purpose of tertiary treatment is to provide a final treatment stage to further improve the effluent quality before it is discharged to receiving environment. So if final treatment process hota hai ye, more than one tertiary treatment process may be used at any treatment plant, and if disinfection is practiced, it is always the final process. इसको हम लोग effluent policing process भी कहते हैं। टर्शरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर जो रिमेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है उसको रिमूव किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और दूसरे और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी रिमूव किया जा सकता है, रिमूव किया जाता है। एंड द बेसिक प्रोसेस दैट occur the basic process include in tertiary treatment are filtration, ion exchange, activated carbon adsorption, electrodialysis, nitrification and denitrification। और जो बैक्टीरिया है, वायरस है और दूसरे पैरासाइट्स जो वाटर में प्रेजेंट हैं that are helpful to public health are also removed at this stage. So tertiary option in tertiary treatment depend on the characteristics of effluent after secondary treatment and what kind of water is needed at the end of treatment. So there are various things we can do with tertiary water. We can use alum for removal of एडिशनल फॉस्फोरस पार्टिकल्स, क्योंकि फॉस्फोरस आपको पता है कि अगर है तो एल्गल ग्रोथ को प्रमोट करता है, एल्गल ब्लूम्स को डेवलप कराता है, और एल्गल ब्लूम्स अगर डेवलप हो जाएंगे तो क्या करेंगे, जो वाटर बॉडीज़ है उनमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को घटा देंगे, ऑक्सीजन डिज़ोल्व ऑक्सीजन को जो है रिमूव कर देंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देंगे। सो एलम वहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन होता है, दैट इज़ that used to help removing additional phosphorus particles and group the remaining solid together for easy removal in the filter। और जो दूसरे और solid particles उनको group करता है ताकि वो filter के through remove हो सके। So we can use alum। Then wastewater from the flash mixture is gravity feed through the sand filter, and because of the addition of alum, tiny particle cluster together in masses called flock. Flock is trapped by sand while the clear water is gravity feed to the chlorine contact tank। ठीक है, पहले ही एलम यूज़ करते हैं, एलम के बाद एलम यूज़ करने से फॉस्फोरस रिमूव हो जाता है, एंड देन उसके बाद से जो टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आपस में ग्रुप हो जाते हैं, ग्रुप होकर के वो फ्लॉक बनाते हैं, और इस फ्लॉक को हम लोग सैंड फिल्टर के थ्रू फिल्टर कर लेते हैं, एंड देन जो वाटर आता है उसको हम लोग आपका क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक में पास कराते हैं, ताकि क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक में जो भी मटेरियल है वो, जो भी वाटर है वो डिसइंफेक्ट हो जाए। और आपको पता है क्लोरीन रिमूव्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म and treated wastewater including bacteria, viruses and parasites such as giardia and cryptosporidium. So chlorine remove all these things present in the wastewater, and remaining chlorine is removed by the adding sodium bisulfite just before its discharge। यानी कि सबसे पहले हमने एलम यूज़ किया, एलम यूज़ करने से फॉस्फोरस को रिमूव किया, देन उसके बाद से फॉस्फोरस रिमूव होने के बाद से सॉलिड्स जो है वो ग्रुप टुगेदर हो गए, उनको हमने सैंड फिल्टर से रिमूव किया, सैंड फिल्टर के से रिमूव करने के बाद से वाटर को हमने जो है वो क्लोरीन टैंक से क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक ट्रीटमेंट कराते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टर्शरी ट्रीटमेंट, अगर इसको हम लोगों को पोर्टेबल वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ करना है तो फर्दर इसका एडवांस ट्रीटमेंट करना होगा। देयर आर मल्टी बैरियर ट्रीटमेंट स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग दिस टर्शरी ट्रीटमेंट वाटर इनटू द potable water system। We can pass to the ultrafiltration, reverse osmosis, UV peroxide, pipeline chlorinated, dispensation time reservoir और treatment of drinking water plant। So ये सब करके फिर हम इसको potable water में भी कर सकते हैं। So this is the process of filtration, how the filter work। ये ऐसा यूनिट बाहर से दिखाई देगा आपको।
ये जो फिल्ट्रेशन है वो सैंड फिल्ट्रेशन हो सकता है, या स्लो सैंड फिल्ट्रेशन हो सकता है, या रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन, दोनों तरह का हो सकता है, इस तरह का होता है. देन मेम्ब्रेन प्रोसेस. Membrane technology is used to treat a variety of wastes including sea waste, organic and inorganic matter, and water soluble oil waste, and the membrane processes are classified on the basis of driving force and separation mechanisms such as multifiltration, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis and फॉरवर्ड ऑस्मोसिस. ये दोनों तरह के प्रोसेस होते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, दोनों इसमें होता है. Then there is next step for advanced tertiary treatment, that is the advanced oxidization system. एडवांस ऑक्सीडाइजेशन सिस्टम में हम लोग ओजोन को इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सके और जो भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट वाटर में प्रेजेंट है उनको डिकम्पोज कर सके. सो ओजोन गैस इज फॉर्म्ड बाय पासिंग ऑक्सीजन थ्रू अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नाउ अ डे ओजोन इज द वाइडली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट आफ्टर द क्लोरीन. After that there is biological nutrient removal process occur in tertiary water treatment. BNR is regarded by some as the type of secondary treatment process, but by other as a tertiary treatment process. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन का जो भी फॉस्फोरस है उनका रिमूवल होता है. सो नाइट्रोजन के रिमूवल के लिए जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन है वो करते हैं. First we convert ammonia to nitrate through nitrification process and followed by denitrification. ठीक है, so nitrification process आपको पता है कि दो स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट इट कन्वर्टेड नाइट्राइट टू नाइट्रोजन, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, एंड देन नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस, और ये जो नाइट्रोजन गैस होता है इसको फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है. सेकेंड थिंग इज फॉस्फोरस. Second nutrient is phosphorus, and phosphorus can be removed by phosphate accumulating organism, and this is a special type of bacteria that remove the phosphorus present in alum. As I already told you, is used for the removal of water, and the phosphate can be done by adding lime, CaOH2, and precipitation of calcium phosphate is formed at pH of 10. तो ये रिमूवल होता है आपका फॉस्फेट का. देन देयर इज कोएगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस आकर, और ये कोएगुलेशन प्रोसेस के बाद से सेडिमेंटेशन के थ्रू जो भी पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव किया जाता है. फर्दर फोर्थ ट्रीटमेंट स्टेज उस तरह के वाटर में किया जाता है जहाँ पर बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स माइक्रो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हों, या बहुत सारे हाउस होल्ड से केमिकल्स निकल रहे हों, या स्मॉल बिजनेस से केमिकल निकल रहे हों, या एनवायरमेंटली परसिस्टेंट फार्मास्यूटिकल पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं. उस तरह के वाटर के लिए फोर्थ ट्रीटमेंट स्टेज की ज़रूरत होती है. सो कौन कौन से टेक्निक इसमें इस्तेमाल होते हैं फोर्थ ट्रीटमेंट के लिए. टेक्निक्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो पॉल्यूटेंट वाया फोर्थ ट्रीटमेंट स्टेज कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर that absorb the micropollutant, and the combination of advanced oxidation with ozone followed by granular activated carbon has been suggested as the cost effective method. The full reduction of microplast, the combination of ultrafiltration followed by GAC, that is the granular activated carbon, has been suggested. Then फॉर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ट्रीटमेंट हो गया कुछ में, फिर देन आपका फोर्थ स्टेज ट्रीटमेंट भी हो गया. देन जो स्लज आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद से आया है उसकी प्रोसेसिंग होती है. सो द सॉलिड हैंडलिंग या स्लज प्रोसेसिंग ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. सो जो स्लज प्रोसेसिंग है इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड हैंडलिंग इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. So sludge is the byproduct. You can see here this is the mechanical treatment or primary treatment, and secondary treatment, biological treatment. After both type of treatment there is formation of sludge, and sludge are collected from primary and secondary treatment, and these sludge goes into the sludge treatment plant. There are basically 3-step process: thickening of the sludge, digestion of the sludge, and dewatering of the sludge. The sludge thickening, sludge digestion, there is dewatering of sludge, and after the dewatering it can be disposed safely into the environment, and these sludge can be used as fertilizer depending on its chemical composition, or it can be or it can goes to incineration plant where the sludge is very
toxic. So this is all about your plant and sludge treatment. Thank you so much. If you really like this video, kindly like to your friends and subscribe my channel and share to your friends. Thank you. Kindly like, share and subscribe my YouTube channel Rajni Classes. Thank you.